Unit 4, probability distribution. Siddhi. First of all, what do you mean by random experiment? આપણને ખબર છે? That will be repeated. Random experiment કોને કહેવાય? So we know the result of an experiment, but exactly which result will come, that we exactly don't know. That is called random experiment. Random variable, any variable whose numerical value depend upon the outcome of a random experiment. Random experiment का जो result आता है उस result को हम random variable कहेंगे. अब random experiment का result कैसा है? Uncertain. तो अगर result uncertain है तो वो result change होता रहेगा. तो जो चीज change होती है उसको हम क्या कहते हैं? Variable. So the random variable may be of discrete or continuous series. What is discrete random variable? The random variable which is countable. ईश्वर, the random variable which is countable, जिसको आप गिन सकते हो, that is discrete variable. For example, કાકા પડી ગયા, તો કાકા પડી ગયા એટલે એનો એક્સિડન્ટ થયો. એ કેટલો એક્સિડન્ટ કહેવાય? એક. કાકા પડ્યા પણ વાગ્યું ના તો અડધો એક્સિડન્ટ કહેવાય કિંજલ? ના કહેવાય, એ આખો જ એક્સિડન્ટ કહેવાય. નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન ઇન અ હાઉસ 1 હોય, 2 હોય, 3 હોય, 1.5 હોય, ના હોય, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડિસ્ક્રીટ રેન્ડમ વેરિયેબલ. પણ તમારું વજન એ કાઉન્ટ થાય કે મેઝર થાય? મેઝર. તો એ શું કહેવાય? કન્ટિન્યુઅસ. તમારી હાઈટ, so which is measurable, it is continuous variable. Which is countable, it is discrete variable. Clear? Okay. चलो, self test. Number of head when coin is tossed 6 times, it is called discrete variable. Number of misprint in a book, ગણાય discrete variable. Height of the student measure થાય, continuous variable. Number of TV set demanded per week, discrete variable. Number of girls in a family, discrete variable. Life of an electric bulb measure થાય, continuous variable. Weight of a student measure થાય, continuous variable. Temperature measure થાય, continuous variable. Number of defective bottles in a pack of 5 bottles, discrete variable. And number of road accident in a day on a particular highway, discrete variable. Clear? What is outcome? Outcome ને આપણે n તરીકે ઓળખતા હતા. Means all possible outcome of experiment, we denoted it by S or U. Event, one or more outcome of a random experiment is called an event. Probability is equal to m upon n. Number of favorable outcome divided by total number of outcome. Probability function, the total probability is always between 0 and 1. Total probability is always 1 and probability of certain thing is always between 0 and 1. The first and most important thing, binomial probability distribution, which is also in college material. I have checked that college sums and material sums are same. તો હું ઇન્ડિકેટ કરાવી દઈશ કે which sum is related to college. Actually અંદર college લખેલું જ છે. તો binomial probability distribution. So write with me.
आइदर वी कॉल दैट फंक्शन इज पी एक्स और एफ एक्स। 12th में हम क्या कहते थे? पी एक्स कहते थे। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? एफ एक्स कहेंगे। पी एक्स कहो या एफ एक्स कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। याद करो ये फॉर्मूला, पढ़ा है ना? एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। अब ये कब यूज होगा वो याद रखना। पी एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नंबर ऑफ सक्सेस। एक्स कैसा है? फिनिट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फिनिट मीन्स काउंटेबल। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। P is equal to probability of success and Q is equal to probability of failure. अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होगा उसके पॉइंट्स याद रखना। पहला, जो वेरिएबल है वो कैसे होने चाहिए? डिस्क्रीट वेरिएबल और फिनिट। फिनिट मीन्स काउंटेबल। उसके बाद हमारे पास दो ही चीज है, या तो सक्सेस या तो फेलियर, बीच का कोई रास्ता नहीं है। P means probability of success and Q means probability of failure. ये तो नॉर्मल कंडीशन है। ट्रायल कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट। ऊपर हेड रख के अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो हरदम हेड ही आता है, तो वो इंडिपेंडेंट ट्रायल हुई नहीं हुई। और दूसरा, वैल्यू ऑफ एन पी मस्ट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। पी और एन कैसे रहेंगे? सेम ही रहेंगे। और पी और एन को हम क्या कहेंगे? पैरामीटर्स। बट यहां पे एक चीज याद रखना, एन कैसा होना चाहिए? स्मॉल, जो हम काउंट कर सकते हैं। अगर एन 1000 हुआ तो इस फंक्शन में आप किसी भी चीज का रेस टू 1000 नहीं कर पाओगे। एन स्मॉल होना चाहिए, बराबर। और प्रोबेबिलिटी नॉट वेरी स्मॉल। अगर एन लार्ज हो गया तो बाइनोमियल यूज नहीं होगा, या एन इन्फिनिट हो गया तो भी बाइनोमियल यूज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर। इट इज ऑल्सो वेरी इजी। चलो बाइनोमियल के सम्स देखते हैं अब डायरेक्टली। अब बाइनोमियल में सबसे पहले कॉलेज के सम्स भी देख लेते हैं क्या दिए हैं। चलो कॉलेज के सम्स पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ध्यान से देखना। जो एग्जाम्पल है वो आपको गिनना नहीं है, वो सिर्फ समझना है। जो क्लास वर्क के सम है वो आप मेरे साथ गिनोगे, मैं बताऊंगा। इफ अ स्टूडेंट रैंडमली गेस एट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलो, एक स्टूडेंट ने क्या किया? गेस किया। किसको गेस किया? एमसीक्यू को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट एग्जैक्टली 3 करेक्ट। ईच क्वेश्चन हैज 5 पॉसिबल चॉइसेस। तो कॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4। चलो, एक स्टूडेंट ने गेस किया। कितने क्वेश्चन को गेस किया? 5।
तो n इज इक्वल टू कितनी ट्रायल ली 5, ये पता चला। अब जो MCQs है उसके अंदर कितने ऑप्शंस है 5 ऑप्शंस है। तो हमने अगर गेस किया है विदाउट एनी थिंकिंग तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर कितना होगा 1/5। 5 ऑप्शन थे उसमें से एक गेस किया तो सही होने का चांस क्या हुआ 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्या होगा 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। इतना चीज पता चला। अब क्वेश्चन में देखो, if a student randomly guess at a 5 multiple choices question, find the probability that student get exactly 3 correct। यहाँ पे कौन से वर्ड पे वेट किया है करेक्ट। तो हमें कितने करेक्ट आंसर चाहिए 3। तो x इज इक्वल टू 3। तो हमें करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना। तो जो करेक्ट की बात करेगा उसको मैं p कहूंगा और जो रॉन्ग की बात करेगा उसको मैं क्या कहूंगा क्यू। इतना बच्चा पता चला। नाउ fx इज इक्वल टू ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली 3 करेक्ट। तो x इज इक्वल टू क्या ले लिया 3, n इज इक्वल टू c 3, p क्या था x की वैल्यू क्या थी q क्या था n इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5c3 है तो 5 से 3 स्टेप पीछे 5 × 4 × 3 नीचे 3 × 2 × 1 1/3 1 ही रहेगा और 5/3 125। 5 - 3 क्या होगा 2, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं 3 3 कैंसल 2 2 * 4 तो 5 2 * 10 10 × 16 125 × 25 that is your answer 3125। क्लियर। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो भी चलेगा नहीं करोगे तो भी चलेगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। ओके कहाँ पे 1/125 है। ओके ये 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 क्या होगा 1 और 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 125। यहाँ पे 5 - 3 2 तो 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। तो मैंने डिनोमिनेटर 125 × 25 ये लिखा 3125 और ऊपर क्या बचा था यहाँ 5 2 * 10 × 16 160। क्लियर। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा नहीं करोगे तो भी चलेगा। कॉलेज का एग्जाम्पल नंबर 5 ध्यान से देखना। अ सर्वे फ्रॉम टीनेज रिसर्च लिमिटेड नोटबुक 3 फाउंड दैट, अब ये पढ़ो, 30% of teenage consumer receive their spending money from part-time jobs। तो P is equal to probability of money
कहां से? पार्ट टाइम जॉब 30% इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 100 0.3। अभी इसको पी नहीं डिसाइड करते, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको पी कहेंगे। चलो, तो 30% को पैसे कहां से आते हैं? पार्ट टाइम जो जॉब से। तो दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? नॉट फ्रॉम जॉब, जॉब में से नहीं आते। तो 1 माइनस 0.3 क्या आएगा? 0.7। इसमें से एक पी होगा और एक क्यू होगा। आगे, इफ 5 टीनेजर्स, कितने टीनेजर्स को सिलेक्ट किया? 5 आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 of them have part-time jobs। तो n इज इक्वल टू क्या लिया? 5। x इज इक्वल टू क्या है? एट लीस्ट 3 हैव पार्ट टाइम जॉब। एटलीस्ट 3 के पास पार्ट टाइम जॉब है। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम 3 लोगों के पास पार्ट टाइम जॉब है, मीन्स 3 लोगों के पास पार्ट टाइम जॉब है या 3 से ज्यादा। हमने कितने को पसंद किया था? तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 3 या 3 से ज्यादा? 3, 4 एंड 5, ये 3 होगा। क्लियर? अब बात किसकी की है? तो पार्ट टाइम जॉब जिसके पास है उसको मैं पी कहूंगा, तो जिसके पास नहीं है उसको क्यू कहूंगा। आपको इतना ही आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? नाउ वी यूज द फॉर्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये चीज हम दो तरह से ढूंढ सकते हैं। जो आसान रहेगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या है? 3, 4, 5। तो या तो हम F3 प्लस F4 प्लस F5 करेंगे, और दूसरा ऑप्शन है 1 माइनस F0 F1 F2। इसमें भी 3 ढूंढना है, इसमें भी 3 ढूंढना है, बट इसमें बाद में माइनस भी करना है ना। तो आसान क्या रहेगा? ये वाला। तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। चलो, F3 गिनते हैं। n इज इक्वल टू क्या था? 5। C 3। P क्या था? 0.3/3। और Q क्या था? चलो फटाफट कैलकुलेट करके दो। 5C3 क्या होगा? 10। 0.3/3 0.027 and 0.7/, चलो सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो। ये P3 मिल गया, F3 मिल गया। उसके बाद ऐसे F4 ढूंढना आएगा, F5 ढूंढना आएगा, और तीनों का टोटल कर दिया। तो इन्होंने कैसा गिना है देखो, ये F3 0.132, F4 मीन्स P4, और P5, P भी कह सकते हो, F भी कह सकते हो। F4 फंक्शन एंड P4 प्रोबेबिलिटी, दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम। तो आंसर इज 0.162। पता चला? ओके, तो ये सब आप अभी गिनोगे। एग्जाम्पल नंबर 6, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। एक कॉइन कितनी बार टॉस किया? तो एग्जाम्पल नंबर 6 में कॉइन
टॉस्ड 4 टाइम्स, तो कितनी ट्रायल हुई? 4, तो वो क्या हो गया हमारा? n। फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो ये नया पॉइंट आया। तो इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज इक्वल टू क्या है? भूली बिसरी याद है? याद करो, मीन क्या था? आओ ना करो यार, n इंटू पी। वेरिएंस क्या था? n इंटू पी इंटू क्यू। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? यस, अंडर रूट एन पी क्यू। अब मुझे p बताओ, p क्या होगा और q क्या होगा? किसको टॉस किया है? शाहरुख खान। कॉइन। तो कॉइन में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक कॉइन की कितनी साइड होती है? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यस, और q इज इक्वल टू बी। तो n क्या था? 4। p क्या था? 1/2। तो मीन आएगा 2। वेरिएंस 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो क्या आएगा? 1। और ये अंडर रूट 1। ये 1 कैसे आया? 2 2 जा 4, 4 4 जा 1, कैंसिल हो गया ना। और 1 का अंडर रूट भी 1। सिंपल था। अब यहां से हमारी गेम शुरू होती है, जो आपको गिनना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार ध्यान से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे पहले। 10 अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड मीन्स ऐसा नहीं है कॉइन में कि हर बार हेड आता है या ज्यादा बार टेल आता है। अनबायस्ड मीन्स बैलेंस कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। एक साथ हमने कितने कॉइन टॉस किए? 10। सिंपल प्रोबेबिलिटी से गिनने जाते हैं तो आप एन ही नहीं लिख पाते। अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो एन इज इक्वल टू 36 हो जाता है। तो 10 कॉइन में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो हम काउंट नहीं कर पाते। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 6 हेड, एटलीस्ट 8 हेड, नो हेड, एटलीस्ट 1 हेड, नो मोर देन 3 हेड। तो यहां पे हम जिसकी बात करते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है आपको? हेड की। तो लिखो मेरे साथ, सबसे पहले n इज इक्वल टू कितनी ट्रायल ली? 10। 10 कॉइन टॉस किए। p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, बिकॉज मैंने क्वेश्चन में सारे ऑप्शन पढ़े, उसके अंदर मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है? सिर्फ और सिर्फ हेड की। तो कॉइन के अंदर हेड आने का चांस कितना है? 1/2। तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो 1 माइनस 1/2, दैट विल बी 1/2। ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। इतना क्लियर? एनी डाउट?
हमारे मटेरियल का जो थर्ड सम है ना वो सेम ऐसा है। चलो, एग्जैक्टली 6 हेड। मुझे कितने हेड चाहिए? तो x इज इक्वल टू 6। मेरे साथ गिनो। एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स भी कह सकते हो, पी एक्स भी कह सकते हो। कॉलेज में पी एक्स कहते हैं तो हम पी एक्स लिखेंगे। चलो, पी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। एन इज इक्वल टू क्या था? सी। एक्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 6। 10 सी एक्स, तो 10 से 6 स्टेप पीछे लिखो। 10 9 8 7 6 5, नीचे 6 5 4 3 2 1। 6 कैंसल, 5 कैंसल, 4 2 जा 8, 2 कैंसल, 3 3 जा 9, तो 7 3 जा 21 इंटू 10, 210 होगा। 1 मिनट ऐसे बाजू में मत लिखना। इंटू 1/6 क्या होगा? 1। और 2/6, 2 की 6 पावर क्या होगा? 64। 10 माइनस 6 क्या होगा? 1 की 4 पावर 1 होगा, एंड 2 की 4 पावर। तो हमारा आंसर 64 इंटू 16 करो। 1024। ये हमारा आंसर। इसको स्मॉल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। इसमें कोई डाउट? चलो, और क्या पूछा है? एग्जैक्टली 8 हेड नहीं, क्या है? एटलीस्ट 8 हेड। तो दूसरा क्वेश्चन है, एटलीस्ट का मीनिंग क्या होगा? कम से कम। तो एटलीस्ट 8 हेड का मीनिंग क्या होगा? 8 हेड और मोर। अब हमने कितने कॉइन टॉस किए थे? 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा? P8 प्लस P9 प्लस P10। तो एक ही बार फॉर्मेट लिखेंगे फॉर्मूला। पी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। एन कितना था? 10। मैं पहले P8 ढूंढता हूं। 10 C 8, P1/2 रेस टू 8, Q1/2 रेस टू 10 माइनस 8। 10C8 क्या होगा? 10 इंटू चलो 876543, 876543 कैंसल। तो 2 5 जा 10, 5 9 जा 45,
ये सारी चीजें आप लिख के करोगे, डायरेक्ट कैलसी पे करने जाओगे तो गलती हो सकती है। 45 इंटू 1 रेज टू 8 1 एंड 2 रेज टू 8 256, 10 - 8 2, तो 1 रेज टू 2 1 अपॉन 4. So our answer is 45 divided by 1024. ये मुझे P8 मिला. क्लियर? उसके बाद P9 ढूंढना है एंड P10 ढूंढना है. P9 क्या होगा? Px इज इक्वल टू NCx. तो n कितना था? 10, C 9 इंटू P रेज टू x. P कितना था? 1/2 रेज टू 9. और Q कितना था? 1/2 रेज टू 10 - 9. 10C9 बराबर 10 ही आएगा. डिवाइड बाई 1024. बिकॉज 10C9 है तो 9 के बाद का तो सारा उड़ जाने वाला ही है ना. और उसके बाद तीसरा क्या ढूंढना है आपको? P10. तो 10C10 1/2 रेज टू 10 and 1/2 रेज टू 10 minus 10. 10C10 1. 1/2 रेज टू 10 is equal to 1 divided by 1024. 10 - 10 क्या होगा? 0. और किसी भी चीज की 0 पावर इज इक्वल टू 1. तो अवर आंसर इज 1/1024. इसमें किसी को डाउट? किंजल, निहाल? तो हमें फाइनल आंसर है हमारा एटलीस्ट 8. तो P8 प्लस P9 प्लस P10. P8 कितना था? हाँ, 10C9 है. 10C9 क्या होगा? 10 × 9 कहाँ तक? 9 स्टेप तक. तो लास्ट स्टेप कौन सा आएगा? 2. और यहाँ पे 9 है तो 9 से लेके 2 तक, तो ये उड़ जाएगा. तो क्या बचा? 10. 1/9 1 ही रहेगा. और 2/9 क्या आएगा? 512. यहाँ पे 10/1 1 ही रहेगा. और 2/1 2 आएगा. तो 512 इंटू 2 1024. तो P8 का आंसर क्या था हमारा? 45/1024. उसके बाद P9 का एंड P10 का. अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर का टोटल ही हो जाएगा. 56/1024 इज योर आंसर. पता चला? yes. अब कुछ सम आपको खुद गिनने हैं, ध्यान से देखना. नो हेड, तो क्या ढूंढना होगा हमें? P0. एटलीस्ट 1 हेड में क्या होगा? एक मिनट. तीसरा क्वेश्चन था नो हेड इज इक्वल टू, आप P0 ढूंढोगे वो आंसर आ जाएगा. चौथा क्या था? एटलीस्ट 1 हेड.
तो 1 2 3 4 10 तक तो नहीं गिन सकते ना हम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू 1 माइनस P0। P0 ऊपर ढूंढा ही था। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? नॉट मोर देन 3 हेड। ये नॉट मोर देन आया। हाँ, नॉट मोर देन मीन्स क्या होगा? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको मैं दूसरे वर्ड में लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं? मैक्सिमम 3 हेड। तो या तो 3 हेड या तो 3 से कम हेड। तो आंसर आएगा P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर? पता चला? चलो गिनना शुरू कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ना। कमेंट ऑन द फॉलोइंग फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 7 एंड वेरिएंस 11। अब आपको कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको मीन क्या दिया है? 7 एंड वेरिएंस। चलो मीन की फॉर्मूला क्या होगी? चलो मीन इज इक्वल टू n इंटू पी है। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 7। और वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस क्या दिया है आपको? मेरे पास एनपी की वैल्यू क्या है? तो वो तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 7 क्यों। यहाँ पे मैंने एनपी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो 11 डिवाइड बाय 7 क्या होगा? क्यों? चलो 11 डिवाइड बाय 7 करो, क्या आता है? और रूल क्या है? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 और 1 के बीच में ही ना। कभी 1 पॉइंट समथिंग प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो कमेंट क्या करना है? तो डेटा आर इनकंसिस्टेंट। ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि उनको गलत सम देने की इच्छा बहुत होती है। तो उन्होंने गलत दे दिया और हमें सिर्फ यही कहना है कि ये सम कैसा है? गलत है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट। चलो थर्ड सम। पहले पूरा सम ध्यान से पढ़ना। The incidence of occupational disease in an industry is such that worker have 20% chance of suffering from it. मीन्स कोई वर्कर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो अंजलि उसका बीमार पड़ने का चांस कितना है? 20%। तो ध्रुवी उसका स्वस्थ रहने का चांस कितना होगा?
80%. What is the probability that one of 6 worker, 4 or more will contact disease? हमारे पास टोटल 6 वर्कर है, आउट ऑफ विच 4 और मोर वर्कर कॉन्टैक्ट डिसीज. तो यहां पे लिखा क्या है, हमें क्या ढूंढना है, कॉन्टैक्ट द डिसीज. तो उसको हम पी कहेंगे. तो थर्ड सम में P इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट डिसीज, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%. तो 0.2. तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 0.2, 0.8. कितने पर्सन को हमने सिलेक्ट किया था, 6. 1 ऑफ दी 6 मीन्स टोटल 6 लोगों को लिया है, 1 तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है. तो टोटल 6 लोग हैं. हमें x इज इक्वल टू क्या है, 4 और मोर कॉन्टैक्ट डिसीज. तो x इज इक्वल टू 4 और मोर. उसको मैं एटलीस्ट 4 भी बोल सकता हूं. तो मेरा आंसर px क्या आएगा, p4 प्लस p5 प्लस p6. बोलो कितना आएगा ये सम, एनी डाउट. क्वेश्चन में P और Q क्या है वो खास देख लेना. चलो सम नंबर 4. With usual notation, find P for binomial random variable x if n is equal to 6. मुझे ढूंढना क्या है, P. ये इंपॉर्टेंट सम एग्जाम में आ सकता है. क्या ढूंढना है मुझे, P ढूंढना है. n इज इक्वल टू 6 है और 9 p4 px इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 2. तो क्वेश्चन नंबर 4 में n इज इक्वल टू क्या है, 6 है. p मुझे ढूंढना है और क्या दिया है, 9 p4 इज इक्वल टू p2. क्वेश्चन में देखना 9 इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2. चलो ये सब मेरे साथ ही गिनोगे. पी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. चलो मुझे कौन से दो चीज को ढूंढना है, 9. तो डायरेक्टली 9 से मल्टीप्लाई करना है बाद में. अभी ढूंढना तो P4 और P2 ही है. चलो पहले P4 ढूंढते हैं. बोलो n इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू p इज इक्वल टू ढूंढना है, x इज इक्वल टू q इज इक्वल टू ढूंढना है, n इज इक्वल टू 6 माइनस 4. देयरफॉर p4 इज इक्वल टू 64 की वैल्यू क्या होगी, 15. तो 15 p रेस टू 4 q रेस टू 2. इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1. पता चला वंशिका,
पड़ी खबर? ईश्वर चंद। नाउ अब मुझे क्या ढूंढना है? सिद्धि P2 तुमने P2, तो n इज इक्वल टू क्या था? 6 C 2 P रेस टू 2 Q रेस टू 6 माइनस 2। 62 की वैल्यू क्या होगी? 15 P रेस टू 2 Q रेस टू 4। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया था? 9P4 इज इक्वल टू P2 है, तो 9 तो वैसे ही रखा मैंने। P4 की वैल्यू क्या थी? 15 P4 क्यू स्क्वायर, और P2 की वैल्यू 15 इंटू P का स्क्वायर इंटू Q का Q रेस टू 4। तो हम क्या कर सकते हैं? 9 इज इक्वल टू, यहां पे था 15 इंटू P का स्क्वायर इंटू Q रेस टू 4 अपॉन 15 इंटू P रेस टू 4 इंटू Q का स्क्वायर। 15 कैंसल, P रेस टू 2 कैंसल, और यहां पे 4 माइनस 2 क्या बचेगा? P का स्क्वायर, Q स्क्वायर कैंसल, और यहां पे 4 माइनस 2 क्या बचा? Q का स्क्वायर। पता चला? हाँ, P रेस टू P का स्क्वायर है यहाँ पे, P का स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू P लिख सकता हूं मैं, और P रेस टू 4 है तो 4 बार P लिख सकता हूं, तो 2P कैंसल हो गए, तो बचा क्या? 2P, तो P का स्क्वायर। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली ये स्क्वायर है वो 4 में से माइनस कर सकता हूँ। 4 माइनस 2 क्या बचा? 2। वैसे यहाँ पे Q रेस टू 4 है तो ये स्क्वायर निकाल दिया, तो 4 माइनस 2 क्या बचा? 2। तो नेट 9 इज इक्वल टू क्या बचा? Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। क्लियर? चलो अंडर रूट निकाल देते हैं। तो 9 का अंडर रूट एक्चुअली प्लस और माइनस 3 होगा, बट हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मैंने सिर्फ +3 रखा। क्लियर? अब मैं भूल गया, अब आप मुझे बताओ क्या करेंगे? कोई एक, मुझे P ढूंढना है। Q इज इक्वल टू 1 माइनस P अपन P होगा ना? P इज इक्वल टू 1 माइनस Q एंड Q इज इक्वल टू 1 माइनस P होगा ना? तो ये P इंटू 3 3P
इज इक्वल टू 1 माइनस पी, ये माइनस पी इस तरफ प्लस पी, तो 3p प्लस पी इज इक्वल टू 1, 4p इज इक्वल टू 1, सो p इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4। तो q अगर ढूंढना हो तो 1 माइनस पी, 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो q इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। बिकॉज P और Q हम बाइनोमियल है तो हमारे पास दो ही प्रोबेबिलिटी होती है, P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज इक्वल टू रिमेनिंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये सम एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, पता चला। क्लियर? एनी डाउट? यस बोलो। यहां तक पता चला? नहीं, बीच में माइनस है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, assuming that 50% of the population of the town takes tea, 50% लोग चाय पीते हैं, मैं भी पीता हूं, and assuming that 100 investigator, ये कैपिटल एन आ गया, each take 10 इंडिविजुअल, बट हमने ट्रायल के लिए कितने इंडिविजुअल को लिए? 10। टू फाइंड आउट दे टेक टी, वो लोग चाय पीते हैं कि नहीं वो चेक करने के लिए हमने 10 को ही सिलेक्ट किया है, 100 को नहीं किया। 100 को गिनोगे तो आप गिनती नहीं कर पाओगे, तब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 people और लेस टेक टी, 3 या 3 से कम लोग चाय पीते हैं, ऐसा कितने इन्वेस्टिगेटर बोलेंगे? तो ये मेरे साथ गिनो, क्वेश्चन नंबर 5, P is equal to probability of टी ड्रिंकर। चाय पीने वाले कितने हैं? 50। तो 0.5 लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हो, बट अंदर जो दिया है वैसे ही करेंगे। तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, दैट विल बी 0.5। ड्रिंकर, टी ड्रिंकर। चलो, हमने कितने लोगों को पसंद किया था? 100 नहीं, 10। 10 इज अवर ट्रायल नंबर। टोटल दैट इज कैपिटल एन कितने लोग थे? 100। और x इज इक्वल टू क्या है? 3 people और लेस, तो x इज इक्वल टू 3 और लेस, तो क्या आएगा? यहाँ पे लोग गलती करते हैं, यस, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर? चलो ये गिन के दो मुझे, P0 P1 P2 एंड P3 गिन के दो। इस समय आप क्वेश्चन नंबर 5 में P इज इक्वल टू 1/2 लेके गिनोगे एंड Q इज इक्वल टू 1/2। 0.5 से मत गिनना, फ्रैक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान, इसका आंसर क्या आया था? 0.17। ओके, तो मुझे क्वेश्चन में क्या ढूंढना था? हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 people और लेस टी टेक अ टी? तो कितने इन्वेस्टिगेटर थे हमारे पास?
100. तो नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज इक्वल टू n इंटू पी एक्स. तो 100 इंटू 0.17, आंसर क्या आएगा? 17 इन्वेस्टिगेटर. तो याद क्या रखोगे? नोट, अगर आपको नंबर ढूंढना है तो n इंटू प्रोबेबिलिटी होगा, और अगर आपको परसेंटेज ढूंढना है तो 100 इंटू प्रोबेबिलिटी होगा. क्लियर? ये सब में किसी को डाउट? नंबर ढूंढना है तो कैपिटल N इंटू प्रोबेबिलिटी. परसेंटेज ढूंढना है तो 100 इंटू प्रोबेबिलिटी. चलो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन फिजिक्स एग्जामिनेशन 20%. 20% में 0.2 भी ले सकते हो और 20 डिवाइड बाई 100 तो 1/5 भी ले सकते हो. इफ 25 बैचेस ऑफ 6 स्टूडेंट, अब यहाँ पे n स्मॉल है, कितने स्टूडेंट की बैच है? 6. तो n इज स्मॉल n इज इक्वल टू 6 एंड कैपिटल N इज इक्वल टू 25 बैचेस. ईच टेक द एग्जामिनेशन. इन हाउ मेनी बैचेस 4 और मोर स्टूडेंट्स वुड पास. 4 और 4 से ज्यादा लोग पास होंगे. तो लिखो क्वेश्चन नंबर 6 की हिंट. P इज इक्वल टू क्या लूंगा मैं? P इज इक्वल टू क्या लूंगा? क्या आएगा? 4/5. यहां पे प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है? और ये क्या दिया है? तो P इज इक्वल टू लिखना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पास, और Q इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल. अब फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 20%. तो 0.20 भी ले सकते हो, या तो 20 डिवाइड बाई 100. 20 5 100. 1/5 ये मेरा Q हो गया. तो P इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5. तो दैट विल बी 4/5. ये मेरा क्या हो गया? P. N इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स को हमने चेक करने के लिए लिया था? 6. हाउ मेनी बैचेस, बैचेस के नंबर पूछे हैं, तो लास्ट में जो प्रोबेबिलिटी आएगी मल्टीप्लाई बाई 25 कर देंगे. 4 और मोर स्टूडेंट वुड पास. x इज इक्वल टू क्या है? 4 और मोर. तो मैं क्या गिनूंगा? P4 प्लस P5 प्लस P6. और जब मुझे नंबर ऑफ बैचेस ढूंढने की बारी आएगी तो मैं टोटल 25 बैचेस थी मल्टीप्लाई बाय जो प्रोबेबिलिटी हमने ढूंढी है वो. पता चला? यस. P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पास कहां से पता चला? क्वेश्चन में देखो क्या बोला है.
इन हाउ मेनी बैचेस 4 और मोर स्टूडेंट वुड पास। किसकी प्रोबेबिलिटी की बात की है? पास होने की। और ये यहां पे किसकी प्रोबेबिलिटी दी थी? फेल होने की। फेल होने की प्रोबेबिलिटी 20% है, तो पास होने की कितनी होगी? 80%। तो 20% फेल होने की प्रोबेबिलिटी 20% इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 100, तो 25 जा 100 क्या आया? और ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज क्यू है। तो P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो 4/5 पास होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? सेवन, फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो सबसे पहले सेवंथ सम के अंदर मुझे क्या ढूंढना है? px ढूंढना है, वेर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x क्या है? एक या एक से ज्यादा। सिंपल चीज है, n हमेशा अगर बड़ा होगा तो सिंपल क्या करेंगे? 1 माइनस p0। ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ढूंढना पड़ेगा ना। एक या एक से ज्यादा है तो क्या नहीं है? एक से कम नहीं है। एक से कम कौन सी अमाउंट है? तो 1 माइनस p0 इज माई आंसर। If mean and standard deviation of binomial distribution are 4 and 3। चलो मीन कितना है? मीन को मैं क्या कहूंगा? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? तो वेरिएंस कितना होगा? और उसको मैं क्या कहूंगा? तो अब npq इज इक्वल टू 9, जिसमें मैं np की वैल्यू 4 रिप्लेस कर दूंगा। तो 4q इज इक्वल टू 9। तो q इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4। तो q इज इक्वल टू क्या है? 2.25। तो यहां पे क्या है? डेटा आर इनकंसिस्टेंट। तो आगे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। एट्थ वाला सम, assuming that half the population is vegetarian, half means कितना? 1/2, so that chances of individual being a vegetarian is 1/2। बताया ही है। assuming that 100 investigator take, सैंपल कितना है? तो n is equal to 10, to see whether they are vegetarian, how many investigator would you expect to report that 3 people or less vegetarian? तो हमें क्या ढूंढना है? p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3 आएगा। तो ये होमवर्क। अ मर्चेंट्स फाइल of 20 accounts contain 6 delinquents and 14 non-delinquents account। तो 6 अकाउंट डिलिक्वेंट्स मीन्स गड़बड़ वाले। तो एक बिजनेसमैन है, अदानी जैसा, नाम नहीं दे सकता मैं, वो होशियार है, अच्छे है, तो उसमें 6 डिलिक्वेंट्स है, मीन्स 6 अकाउंट्स में गलती है और 14 नॉन डिलिक्वेंट्स है। An auditor randomly select 5 of these accounts for examination,
What is the probability that auditor find exactly 2 delinquent account? तो यहाँ पे P2 ढूंढना है, बट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा? डिलीक्वेंट अकाउंट कितने हैं? ओके, 6 अकाउंट डिलीक्वेंट से आउट ऑफ 20 अकाउंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6 डिवाइड बाई 20 होगी। दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 3/10। P मिल गया, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, तो 7/10 क्या आएगा? Q। N इज इक्वल टू कितने अकाउंट्स को चेक किया था आपने? 5 ऑफ फॉर दिस अकाउंट एग्जामिनेशन, कितने अकाउंट्स को सिलेक्ट किया ट्रायल के लिए? 5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑडिटर फाइंड एग्जैक्टली 2 डिलीक्वेंट्स अकाउंट? तो हमारे P2 ढूंढना है। क्लियर? टोटल 20 अकाउंट देखे ध्रुवी, उसमें से 6 अकाउंट में गड़बड़ी थी, तो गड़बड़ी होने का चांस 6/20, 2 से डिवाइड किया तो 3/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ डिलीक्वेंट्स अकाउंट। तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, 7/10। हमने टोटल कितने अकाउंट ट्रायल के लिए लिए? 5, तो N इज इक्वल टू 5। हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 2 डिलीक्वेंट्स अकाउंट, तो X इज इक्वल टू 2। 2 डिलीक्वेंट्स अकाउंट ढूंढने हैं, और बाकी क्या है? फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिलीक्वेंट अकाउंट इन सैंपल स्पेस। बोलो इसका आंसर। क्या ढूंढना है? नेक्स्ट मैच में कोहली कितना रन करेगा वो कैसे पता चलेगा? अरे जे रम से त्यारे है। नेक्स्ट मैच में कोहली कितना रन करेगा अगर आपको गेस करना है, तो आप कौन सा नंबर गेस करोगे? कई तो लॉजिक हो ना, कौन सा नंबर गेस करोगे? उसकी जितनी एवरेज है, बराबर। सपोज वनडे मैच है और वनडे में वो 58 की एवरेज से रन करता है, तो नेक्स्ट मैच में हम गेस करना हो तो हम क्या करेंगे? उसके जो रन होंगे वो 58 के आसपास होंगे, ऐसा गेस करेंगे, तो करेक्ट होने का चांस सबसे ज्यादा है। तो एक्सपेक्टेड नंबर आपको ढूंढना है, तो हमें क्या ढूंढना होगा? मीन। तो मीन इज इक्वल टू N इंटू P। N कितना था एंड P कितना था? बोलो। तो आंसर विल बी 1.5। नहीं, टोटल फाइल कितने अकाउंट्स की है? एक मिनट, नहीं 5 ही सिलेक्ट किए ना एग्जामिनेशन के लिए, वही रहेगा। और 10। एक्सपेक्टेड नंबर दैट इज मीन, मीन इज इक्वल टू N इंटू P। और लास्ट सम, if on an average rainfall on 12 day in a 30 days, तो रेन होने का चांस क्या है?
12/30, 30 दिन में से 12 दिन में रेन हो रही है, तो रेन की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तो किससे डिवाइड होगा? 6 से। 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, तो रेन की प्रोबेबिलिटी 2/5. Find the probability that the first 4 days of a given week will be fine and remainder wet. That rain will fall on just 3 days of a given week. यहाँ पे किसकी बात करी है? एक वीक. तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? तो n इज इक्वल टू 7. पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. That the first 4 day of a given week be fine. पहले 4 दिन फाइन रहेंगे, मीन्स बारिश नहीं गिरेगी. एंड रिमाइंडर वेट, तो बाकी के 3 दिन में बारिश गिरेगी. तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 3. बिकॉज हमें रेन की प्रोबेबिलिटी को p कहा है, तो जिस दिन रेन होगा वो हमारे लिए x होगा. 4 दिन में बारिश नहीं गिरी तो बाकी के 3 दिन में गिरी ना, तो x इज इक्वल टू 3 ढूंढना है. That rain will fall on just 3 days of a given week. हाँ, तो दोनों में सेम ही ढूंढना है. पहले में क्या बोला है कि 4 दिन फाइन रहेंगे और बाकी के दिन वेट रहेंगे, तो 3 दिन बारिश होगी. और यहाँ पे दैट रेन विल फॉल ऑन जस्ट 3 days ऑफ अ गिवन वीक. दोनों का आंसर एक ही है. आपको x इज इक्वल टू 3 ही ढूंढना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे पहले में बोला कि 4 दिन फाइन रहेंगे और दूसरे में बोला कि 3 दिन बारिश गिरेगी, तो टोटल 7 दिन है. तो 7 में से 4 दिन फाइन रहे और 3 दिन में ही बारिश गिरी ना, तो दोनों में P3 ही ढूंढना है. क्लियर? सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन.